Hello, Assalamu alaikum, class 5. How are you? I hope you will be fine. Today we are going to study comprehension of unit number 8 and our topic is fantastic fruit. In this chapter we will discuss about its benefits. Okay, so let's start our vocabulary. Number 1, fantastic. Fantastic का मतलब होता है ज़बरदस्त. Number 2, mandarins, किनो, सीट्रस, खट्टा. नंबर 4, स्टोन. स्टोन वैसे तो हम कहते हैं पत्थर को, लेकिन जब हम फ्रूट में इसको डिस्कस करेंगे तो ये गुठली की सेंस में इस्तेमाल होगा. जिस तरह कुछ फ्रूट्स होते हैं जिसके अंदर गुठलियाँ पाई जाती हैं, जैसे मैंगो है, पीच है, प्लम वगैरह आते हैं. एंड द नेक्स्ट इज ओवरराइप. ओवरराइप पका हुआ. लाइम्स, किनो. एसिडिक, इमली की तरह खट्टा. स्कैटर्ड, बिखरे हुए, फैले हुए. ग्रेप फ्रूट, चकोतरा. स्क्वीजिंग, निचोड़ना. सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर रीडिंग. Before its reading I will tell you about it something. इसमें बताया जा रहा है कि फ्रूट्स जो है वो एक बहुत अच्छी फूड है. ये इंसान की हेल्थ के लिए, उसकी आइज़ के लिए, यानी उसकी पूरी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. ये इसको स्ट्रॉन्ग रखते हैं, हेल्दी रखते हैं. लोग सबको फ्रूट जो है दिन में 1-2 दफ़ा ज़रूर खाने चाहिए. इसके लिए मल्टीपल रेसिपीज़ हैं. इसको हम सैलड की फॉर्म में भी खा सकते हैं. ठीक है, तो सो वी स्टार्ट अवर रीडिंग. Fruit is a fantastic food. It is full of vitamins, benefits your skin, your eyes and your teeth and helps keep you healthy and strong. People should eat at least 1 or 2 types a day. It is really easy to make fruit interesting. Have at least 5 different types in your fruit basket at home. Make sure your fruit is ripe. If it's not, it won't taste good. Overripe fruit like a banana can be used to make something like banana bread. Here's a simple recipe for a delicious fruit salad. Delicious fruit salad recipe. Ingredients: 1 banana, soft yellow. 1 apple, hard green. 10 grapes, soft black. 10 strawberries, red. 1 kiwi fruit, soft green, orange juice. Instructions: peel the kiwi fruit and the banana, यानी कीवी फ्रूट और बनाना दोनों को हम छील लेंगे. कट ऑल द फ्रूट इनटू इवनली शेप्ड बाइट साइज पीसेस. डिस्प्ले नाइसली इन अ बाउल और लंच बॉक्स. फिनिश बाय स्क्वीजिंग सम फ्रेश ऑरेंज जूस ओवर इट. So start our second part, fruit facts. Number 1, there are soft fruits like raspberries and hard fruits like pears. Number 2, mandarins, lemons, oranges, limes and grapefruits are example of citrus fruits. They are acidic. Number 3, all fruits have a stone, seeds or pips. They need these to make new fruit grow. Number 4, stones are hard and in the center of the fruit. Pips are fairly hard and usually evenly shaped in the middle of the fruit. Seeds are very tiny and scattered through the fruit. And the last one is the stones are never eaten. We try not to eat the pips, but the seeds are so small they can be eaten. This is its reading. I hope you will enjoy. Now we will discuss its activity. Okay students, now we will discuss about its activities and the part 1 is answer the questions. Question number 1 is why should you have fruit each day? आपको डेली फ्रूट क्यों खाना चाहिए? Answer is we should have fruit each day because it helps keep you healthy and strong. Number 2, name 3 fruits that grow in your country. कह रहे 3 ऐसे फलों के नाम बताएं जो आपके मुल्क में उगाए जाते हैं. बनाना, ऑरेंज, एप्पल्स. नंबर 3, नेम 3 सिट्रस फ्रूट्स. 3 खट्टे फलों के नाम बताएं. ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट, लाइम. नंबर 4, डू यू लाइक फ्रूट? यस,
नो, वाई? तो आंसर आप इसमें कहा जा रहा है कि क्या आप फ्रूट को पसंद करते हैं, हाँ या ना, और अगर पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते तो क्यों, हमने रीज़न भी बतानी है। आई लाइक फ्रूट बिकॉज दे आर फुल ऑफ vitamins and keep you healthy. Number 5, name your 3 favorite fruits in order. Mangoes, apple, melons. This is our part 1. And the part 2 is fruit or vegetable. Circle the 5 vegetables in the list below. यहाँ पे एक टेबल बताया गया है जिसमें उन्होंने कुछ फ्रूट्स बताए हैं, कुछ वेजिटेबल्स बताए हैं। तो हमने जो वेजिटेबल्स हैं उनको हमने सर्कल करना है। नंबर 1, ग्रेप, नेक्टेरियन, कैरेट, कीवी, ब्रोकली, पियर, मेलन, ब्लैककरंट, सेलरी, बनाना, एप्रिकॉट, एप्पल, रेस्पबेरी, स्पिंच, पीच, ऑरेंज, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, पार्सनिप, पाइनएप्पल, प्लम। अब आपने बताना है कि इसके अंदर से जो वेजिटेबल है वो कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1 इज सेलरी, नंबर 2 इज ब्रोकली, नंबर 3 इज पार्सनिप। पार्सनिप भी गाजर की एक शक्ल होती है, ब्रोकली जो है ये गोभी की एक शक्ल होती है, ठीक है। उसके बाद स्पिनच, पालक को कहा जाता है, और सेलरी, अजवाइन। अजवाइन को हम वेजिटेबल में इस सेंस में लेकर आएंगे क्योंकि इसके पत्तों की फॉर्म में ये हमें पाई जाती है, ठीक है। तो उसके बाद पार्ट सी है, इमेजिन, सेलेक्ट 5 फ्रूट्स फ्रॉम फ्रूट्स यू गेट इन योर लंच बॉक्स, ड्रा दैम इन अ फ्रूट बॉल। आपने अपने लंच बॉक्स में जो फ्रूट हैं उसके अंदर से 5 फ्रूट जो हैं वो यहाँ पे ड्रा करने हैं। आई होप यू विल एंजॉय। हेलो क्लास 5, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। मुझे उम्मीद है कि आपने यूनिट नंबर 8 की एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से लर्न कर लिया होगा। नाउ वी आर स्टार्ट ग्रामर ऑफ यूनिट नंबर 8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we read this part. Use of a or an. Sometimes we put a before a noun or an adjective. कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात हम किसी नाउन या एडजेक्टिव से पहले ए लगाते हैं। अब पहली बात, नाउन किसे कहते हैं? नाउन आप जानते हैं किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को कहा जाता है, और एडजेक्टिव किसी चीज़, जगह या शख्स की खूबी या खामी को जब बयान किया जाता है तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। इफ़ द वर्ड बिगन्स विद अ वॉल, कह रहे हैं कि अगर कोई लफ्ज़ जो है वो वॉल से स्टार्ट हो रहे हों, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, इन लेटर से स्टार्ट हो रहे हों, वी यूजुअली यूज़ एन इंस्टेड ऑफ ए, तो हम ए की बजाय एन लगाते हैं। यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल्स भी बताए हैं। ही एट एन ऑरेंज, इट वॉज एन ईजी टेस्ट। तो ये ऑरेंज है तो ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, इट्स अ वॉल, और नंबर सेकंड पे ईजी, ये ई से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी वॉल है। तो दोनों के साथ उन्होंने पहले जो है वो एन लगा दिया है, ठीक है, क्लियर। नाउ वी विल रीड इट्स पार्ट 1। राइट ए और एन बिफोर ईच नाउन। अब हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है तो इस पार्ट में हमने इस चीज़ को अप्लाई करना है कि ए कहाँ पे लगाना है और एन कहाँ पे लगाना है। तो ये बहुत इजी है, आप लोग इसको बहुत इजीली हल खुद भी कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको 1-2 डिस्कस कर देती हूँ। एक उन्होंने एग्जाम्पल आपसे पहले ही बता दी हुई है आपको, एन इन्विटेशन, अ कार्ड। अब ये अल्सर है तो हम ए लगाएंगे या एन लगाएंगे? तो डेफिनेटली यहाँ पे हम एन लगाएंगे। नंबर 11 पे एप्पल, एन एप्पल, 9 एन आई। सो लेट्स स्टार्ट अवर पार्ट बी। पार्ट बी में वो क्या कह रहे हैं? यूज द नाउन इन एक्सरसाइज ए विद ए आर एन टू फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहे हैं ऊपर दिए हुए टेबल में जो नाउन्स इस्तेमाल हुए हैं उनको हम लोगों ने इस फिल इन द ब्लैंक में यूज़ करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल उन्होंने बताई हुई है, आई हैव एन अंकल इन चाइना हु स्पीक चाइनीज़, ठीक है। अब अंकल है तो अंकल ये यू से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे एन लगाया हुआ है। नंबर 2, देयर वाज
डैश इन द प्रोग्राम अबाउट द जू, तो यहाँ पे आएगा एन एलिफेंट। नंबर 3, मैरी सा डैश इन द फ्रीजर ड्रॉर। अब यहाँ पे आएगा एन आइसिकल। आइसिकल का मतलब होता है कुल्फी। नंबर 4, सम टाइम वी यूज डैश इन स्कूल, अ कंप्यूटर। ठीक है, इसी तरह मैं आपको कुछ और भी इसके डिस्कस करके बताती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। नंबर 12 है जैसे वी गॉट डैश टू आवर कजन्स वेडिंग, तो इसका है एन इनविटेशन। ठीक है, तो नाउ वी विल रीड पार्ट 3। अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंस एंड यूज ए आर एन बिफोर देम। अब इसमें हमने 2 काम करने हैं। इसमें क्या करना है हम लोगों ने, एक तो इसको एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है और दूसरा हमने ब्लैंक्स को फिल भी करना है। जैसे नंबर 1 है वी हैड डैश टेस्टी फ्राई येस्टरडे मॉर्निंग, तो अब हम लोगों ने क्या इसके अंदर बताना है, ए लगाना है या एन लगाना है। तो आपको बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा कि ये वॉल से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ए लगा हुआ है इसलिए। तो टेस्टी इस चीज़ की खूबी या खामी को बताया गया है, तो यहाँ पे टेस्टी जो है ये इसका एडजेक्टिव है। जैसे नंबर 2 है वी एट डैश एशियन मील फॉर ओवर डिनर। अब यहाँ पे उन्होंने एशियन मील, खाना तो वैसे मील का मतलब क्या होता है, खाना, तो उन्होंने कौन सा खाना खाया है, जिस तरह हम कॉन्टिनेंटल खाने होते हैं, चाइनीज होते हैं, इसी तरह एशियन है। तो एशियन यहाँ पे इसकी एडजेक्टिव है, एशियन को अंडरलाइन करेंगे तो 8 से पहले डेफिनेटली, तो यहाँ पे हम एन आएगा। वी एट एन एशियन मील फॉर ओवर डिनर। एंड द लास्ट वन इज द मैन हैड डैश पैटर्न कैप ऑन हिज हेड, तो पैटर्न पी से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे ए आ जाएगा। तो पैटर्न डिजाइनिंग वाली, तो पैटर्न यहाँ पे अंडरलाइन हम करेंगे, ये इसका एडजेक्टिव है कि उसने बड़ी डिजाइनिंग वाली कैप पहनी हुई थी। हेलो क्लास 5, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? टुडे वी विल डिस्कस द वर्ड स्टडी ऑफ यूनिट नंबर 8। सो लेट्स स्टार्ट अवर पार्ट 1। ये पार्ट हमारा कंप्रीहेंशन से लिया गया है। So let's start it. Comprehension. Find the words in the list that mean the opposite of those in the table. इसमें हम लोगों ने words opposite हल करने हैं। ठीक है, ये words बताए गए हैं, इन words के हम लोगों ने यहाँ पे opposite put करने हैं जो इस rectangle box में दिए गए हैं। ठीक है, एक example already उन्होंने हमें बताई हुई है, like adult, child, blunt, sharp, here का क्या होगा, there. Okay, the rest of the part you will do by yourself. Okay, now part B, vocabulary. Find the word in 1 and 2 using the clues. Put them together to make a real compound word. अब compound word क्या होता है? Compound word वो होता है जो 2 लफ्ज़ों को मिलाकर दो लफ्ज़ों को मिलाते हैं तो एक नया वर्ड हमारे सामने आ जाता है। जिस तरह हम पहला वर्ड पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। ठीक है, जैसे हैं आप पोलाइट ओल्डर फीमेल। अब पोलाइट ओल्डर फीमेल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये किस चीज़ का क्लू है, लेडी। इट बिल्ड्स अ नेस्ट, ये घोंसले बनाता है। घोंसले कौन बनाता है, बर्ड। ठीक है, अब ये देखें, लेडी कहते हैं औरत को, बर्ड कहते हैं परिंदे को। अलग अलग दोनों का एक अपना मीनिंग है, लेकिन जब हमने इसको कंपाउंड वर्ड में लेके आए तो ये लेडी बर्ड, ये एक परिंदे का नाम हमारे सामने आ गया है। ठीक है, अब हम पार्ट 2 करेंगे। लॉट्स ऑफ दिस ऑन द बीच। बीच पे बहुत सारी क्या होती है, सैंड। यू कैन ड्रा ऑन अ पीस ऑफ इट, आप इसके ऊपर कुछ भी ड्रा कर सकते हैं। तो किसके ऊपर हम चीज़ें ड्रा करते हैं, पेपर। तो कंपाउंड वर्ड हमारे पास क्या होगा, सैंड पेपर। ओके, नाउ पार्ट नंबर 3 और 4 यू विल डू बाय योरसेल्फ। पार्ट सी, वर्ड स्ट्रक्चर। बहुत मज़े का ये पार्ट है हमारा, बहुत आप इसको एंजॉय करेंगे। चेंज 1 लेटर, इस चीज़ को आपने फोकस करना है। चेंज 1 लेटर टू मेक अ न्यू वर्ड at each step until you reach the target word. Start by changing the highlighted letter. ओके, अब नंबर 1 जिस तरह आपने बहुत ध्यान से इसको समझना, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगी और बाकी का पार्ट आप खुद भी कर सकते हैं। फिर नंबर 1 है बेल्ट। अब हाईलाइटेड वर्ड क्या है,
एल। अब यहाँ पे उन्होंने एल को स्किप करके एस लगा दिया है, तो हमारे पास नया वर्ड क्या आ गया है, बेस्ट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किस चीज़ को स्किप अगले पे किया है, ई को, तो ये हो गया बस्ट और मस्ट। ओके, पार्ट 2 इज केप। तो अब यहाँ पे हमने पी को स्किप करना है, तो पी को स्किप करके हम अपनी मर्जी से कोई भी लेटर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। हम यहाँ पे आर लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा केयर, और यहाँ पे हम लोग फिर सी को फर्स्ट लेटर को स्किप कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा मेयर। ओके, केयर मेयर। पार्ट 3 है पोर, यहाँ पे आएगा टोर और टायर। बर्ड, बाइंड, बैंड, गेम, केम, केयर। ठीक है, अब पार्ट डी डिस्क्रिप्टर्स। चूज 2 वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। यहाँ पे ये पार्ट दिया गया है, हमने इस टेबल के अंदर से 2 वर्ड्स चूज करने हैं और इन ब्लैंक्स को हम लोगों ने फिल करना है ताकि हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, ओके, वी विल डू इट। आई यूज द डैश डैश बनाना टू मेक द बनाना ब्रेड। बनाना ब्रेड को बनाने के लिए मैंने क्या क्या यूज़ किया, तो इसका हो जाएगा सॉफ्ट एंड ब्लैक बनाना टू मेक अ बनाना ब्रेड। ओके, नंबर 2, आई लव जूस मेड फ्रॉम स्वीट जूसी ऑरेंज। नंबर 3, कीवीज लुक्स लाइक एग्स विथ hairy brown skin. The rest of part you will do by the help of your teachers or siblings. Okay, part E, remove one letter from each word to make a new word. The letter can come from anywhere in the word. अब हमारे पास ये 6 वर्ड्स हैं, इनमें से उन्होंने बताया कि आप हर वर्ड में से कोई एक लेटर स्किप करें और एक नया वर्ड हमारे सामने आ जाएगा। जैसे रैंक है, तो इसमें से उन्होंने के को स्किप किया तो एन आ गया, रैन। 4, इसके अंदर से हम एफ को स्किप करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओवर। यहाँ पे है स्ट्रिंग, तो अब हम इसके अंदर से किसको स्किप करेंगे, टी को, तो क्या हो जाएगा, रिंग्स। ठीक है, समझ आइए आपको। द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स यू विल डू बाय योर सेल्फ। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है। थैंक यू। Hello class 5, Assalamu alaikum. Today we will discuss the checkup of unit number 8. So let's start our part A. Part A is relating to the vocabulary. Write the words that begin with one of the following. नीचे टेबल दिया गया है, उन्होंने बोला है कि हमने वो वर्ड्स यहाँ पे पुट करने हैं जो इन वर्ड्स लेटर्स के साथ शुरू होंगे। ठीक है, सो पार्ट 1 इज एन अदर वर्ड फॉर शाउट। शाउट के लिए दूसरा वर्ड कौन सा यूज़ होता है, शाउट कहते हैं चलाना। तो हमने देखना है कि वो किससे वर्ड स्टार्ट होगा हमारा, तो वो स्टार्ट होगा पहले से, स्ट्रीम। ओके, नंबर 2, अ स्मॉल रिवर, एक छोटा दरिया, वो हमारा इस लास्ट वाले से स्टार्ट होगा, स्ट्रीम। ओके, अब मैं करती हूँ यहाँ पे पार्ट ए 8, अनटाइडी राइटिंग। अनटाइडी राइटिंग को हम जब सिमिलर वर्ड इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा फर्स्ट से स्टार्ट होगा, स्क्राइबल। ठीक है, अब इसी तरह मैं करूँगी पार्ट 6, एंड अदर नेम ऑफ कोड। कोड के लिए सेकंड वर्ड कौन सा हम यूज करेंगे, स्ट्रिंग। ओके, द रेस्ट ऑफ द लाइन्स यू विल डू बाय योर सेल्फ। ओके, नाउ पार्ट बी, comprehension. Complete each sentence with 2 facts from fantastic fruit. ये पार्ट हमारा fantastic fruit से लिया गया है, यानी उसकी comprehension से। इसमें हम लोगों ने फैंटास्टिक फ्रूट यानी फ्रूट की करैक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना है, और इसमें हर लाइन में हमने उसकी 2-2 करैक्टरिस्टिक्स को बताना है। ठीक है, तो नंबर 1 है फ्रूट इज़ गुड फॉर। फ्रूट किस लिए अच्छा है, योर स्किन एंड योर टीथ। हम लोग इसको ऑलरेडी कंप्रीहेंशन की फर्स्ट लाइन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फ्रूट सैलड इज, फ्रूट सैलड क्या है, इजी टू मेक, आसानी से बन जाता है, एंड कलरफुल। नंबर 3, फ्रूट कंटेन्स, फ्रूट के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, अ स्टोन, अ सीड और अ पिप। पिप डू यू नो, एक कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनके बीज बहुत नरम होते हैं लाइक खरबूजा, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके जो सीड है वो बहुत हार्ड होते हैं, उनको हम चबाएं तो खा नहीं सकते, लाइक एप्पल। ओके, और इसका सेकंड वाले में आ जाएगा
विटामिन्स। ओके, इसके अंदर और क्या पाया जाता है? विटामिन्स। ऑरेंजेस आर सिट्रस फ्रूट, ये सिट्रस फ्रूट है और गुड फॉर मेकिंग जूस। एंड द 5 इज बनाना कैन बी यूज्ड। बनाना को हम किस लिए यूज कर सकते हैं? टू मेक ब्रेड एंड इन फ्रूट सैलड। ठीक है, नाउ द पार्ट सी विच इज रिलेटेड टू द ग्रामर। राइट ए और एन बिफोर दीज नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स। हमने नाउन है कुछ यहाँ पे, उनसे पहले ए और एन लगाना है और कुछ एडजेक्टिव से पहले। तो बहुत इजी पार्ट है, सिर्फ आपने अपने जहन में ये रखना है वो वर्ड्स जो वोवल से स्टार्ट होते होंगे वहाँ पे आपने एन लगाना है, और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते होंगे वहाँ के स्टार्ट पे आप लोगों ने ए लगा देना है। ठीक है, जिस तरह वी रीड अ स्टोरी अबाउट एन ईवल विच। अब एन है तो ई है, ये एक वाउल लेटर है तो इसलिए यहाँ पे हम एन लगाएंगे। I thought that it was an empty box, but there was an egg inside. I hope आप इसको समझ चुके होंगे। So the rest of part you will do by yourself. Number D, dictation. A passage will be read aloud. Write the text accurately. इसमें क्या होगा? आपका ट्यूटर या आपके सिबलिंग्स और आपके पेरेंट्स जो हैं वो कंप्रीहेंशन से कोई भी लाइंस, कुछ लाइंस लेंगे और आपको वो लिखवाएंगे जो आपने बिल्कुल ज़बानी लिखनी है और एक्यूरेट लिखनी है। ठीक है, पार्ट ई स्पेलिंग्स। 10 वर्ड्स विल बी रीड अलाउड, लिसन एंड राइट देम करेक्टली। इसमें भी आप लोगों ने 10 जो वर्ड्स हैं स्पेलिंग के साथ लर्न करने हैं और वो पूरे यूनिट में से कहीं से भी आपसे लिखवाए जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम फिर उनके स्कोर की मार्किंग करेंगे कि आपने कितनी अच्छे से उसको लर्न किया है। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। सो आपने इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है। थैंक यू वेरी मच।